ویلکم بیک علاقائی خبروں میں آپ کو خوش آمدید اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے عمر کوٹ سے، جہاں محکمہ صحت سندھ کی نااہلی سامنے آ گئی۔ عمر کوٹ ڈسٹرکٹ آئی اسپتال علاج کی سہولت سے محروم۔ اسپتال میں نہ کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اور نہ ہی آنکھوں کا ماہر سرجن، جبکہ ایک گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر کو اسپتال کا چارج دے دیا گیا ہے۔ عمر کوٹ کا واحد آنکھوں کا سرکاری اسپتال، جہاں پر روزانہ 200 سے زائد مریض اپنی آنکھوں کا معائنہ کروانے آتے ہیں، لیکن یہاں پر ماہر ڈاکٹر کی عدم دلچسپی کے باعث ایک گائنیکولوجسٹ ان کی آنکھوں کا معائنہ کر کے ادویات فراہم کرتی ہیں، جبکہ ہسپتال میں 2 سالوں سے کوئی برا آپریشن نہیں ہوا۔ گائنیکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ایسے مریض جن کو آپریشن ہونا لازمی ہے، وہ ماہر سرجن ہیں ہونے کے باعث اپنا درد اٹھائے مایوس ہو کر گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب دور دراز سے آنے والے ان مریضوں کی اکثریت کا تعلق غریب طبقے سے ہے، جو نجی اسپتال کے اخراجات نہ اٹھانے کے باعث سرکاری اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، مگر وہاں پر بھی مایوسی ان کی مقدر بن جاتی ہے۔ ٹنڈو محمد خان کے رہائشیوں کا سماجی رہنما کی گرفتاری کے خلاف احتجاج۔ حیدرآباد پریس کلب آج بھی ظلم کے ستائے شہریوں کی امیدوار کا محور بنا رہا۔ سینکڑوں کی تعداد میں ٹنڈو محمد خان کے رہائشیوں نے مقامی سماجی رہنما منصور علی ملاح کے خلاف مقدمے کے اندراج اور گرفتاری پر احتجاج کیا اور نعرے بازی کی، اور حکام بلا سے مطالبہ کیا کہ وہ واقعے کا نوٹس لے کر منصور علی کی رہائی کے لیے اقدامات کریں اور جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں۔ خبر شامل کریں گے شیخو پورہ سے، جہاں علاقہ خانقاہ ڈوگرہ میں بچوں کو اغوا کرنے والا گینگ متحرک ہو گیا۔ ایک ہفتے میں 3 بچوں کو اغوا کرنے کی ناکام کوشش، پولیس کی عدم دلچسپی سے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ شہریوں نے ڈی پی او شیخو پورہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں کم سن بچوں کو اغوا کرنے والا گینگ نے ایک ہفتے کے اندر 3 بچوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان ملزمان نے محلہ محمد پورہ کی محنت کش شیخ طارق کی 6 سالہ بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، تاہم شہریوں کی دوڑ دھوپ پر ملزم بچی کو گلی میں پھینک کر فرار ہو گیا۔ دوسرے واقعے میں دکاندار کا بیٹا انس روٹیاں لینے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو نامعلوم شخص نے بچے کے منہ پر رومال ڈال کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، تاہم بچے کی مزاحمت پر ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ جبکہ واردات کا تیسرا واقعہ میڈیکل سٹور کے باہر پیش آیا، جہاں محکمہ ہیلتھ کے ملازم ابو بکر کے 4 سالہ بیٹے کو میڈیکل سٹور کے سامنے نامعلوم ملزم نے اٹھانے کی کوشش کی، تاہم بڑے بھائی کے شور مچانے پر ملزم فرار ہو گیا۔ شہر بھر میں ان وارداتوں کے بعد شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے، جبکہ پولیس ابھی تک کوئی بھی سراغ لگانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ شہریوں نے ڈی پی او شیخو پورہ اور آئی جی پنجاب سے واقعات میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں، پاک پتن سے سستے بازاروں میں ناقص اور غیر معیاری اشیاء کی ڈسپلے پر شہری پھٹ پڑے۔ خریداروں نے انتظامیہ کی نااہلی کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے اور سستے بازاروں میں اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جانتے ہیں نمائندہ JNN طارق سجاد چشتی کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن میں ضلعی انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی۔ سستے بازاروں میں ناقص اور غیر معیاری اشیاء کے ڈسپلے پر شہری پھٹ پڑے۔ حکومت پنجاب نے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کو بھاری سبسڈی سے سستے بازار جاری رکھنے کا حکم دے رکھا ہے، لیکن انتظامیہ کی نااہلی کے باعث پاک پتن میں 2 بازار لگا تو دیے گئے، مگر صرف کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے ڈسپلے کی حد تک محدود ہے۔ دور دراز سے سستے داموں اشیاء خود و نوش خریدنے کے لیے آنے والے خریدار ناقص اشیاء اور غیر معیاری سبزیاں دیکھ کر انتظامیہ کی غفلت کے خلاف پٹ پڑے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہماری گزارش یہ ہے بھی ریٹ ادھر بہت مہنگا ہے، یہاں سے سب چور بازاری ہے۔ آپ دیکھو جی جانوراں دے کھان والے کہ بندیاں دے کھان والے، پیاز دیکھو اور لال ٹماٹر دیکھو گلے سڑے ہوئے، ان کے سائز دیکھو۔ یہاں پہ سہولت بازار میں آئی ہوں اور یہاں پہ غیر معیاری سبزی دی جا رہی ہے اور گھی بھی بالکل ناقص ہے۔ جو میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہی گزارش ہے کہ یہاں پہ نا اگر یہ سہولت بازار غریبوں کے لیے بنایا گیا ہے تو اس کی پوری اس کو ڈسکشن کیا جائے اور اس میں امداد کی جائے، اور بالکل یہاں پہ کوئی سبزی کے کھاتا نہیں ہے، عام غیر معیاری سبزی یہاں پہ دی جا رہی ہے۔
सस्ते बाजारों में चीनी, मटन, बीफ और फल जो कि रोज़मर्रा की अशिया हैं दस्तयाब तक नहीं हैं और घी, साबुन, मसाला जात समेत इंतहाई नाकिस क्वालिटी की हैं। ज़िली इंतज़ामिया ने बाज़ारों का दौरा करना तक गवारा न किया है। शहरियों ने इंतज़ामिया की नाअहली के खिलाफ वज़ीर-ए-आला पंजाब से नोटिस लेने और सस्ते बाज़ारों में अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ो, आपको बताएं ननकाना साहब DPO बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। डकैती के मुकदमे मतलूब इश्तहारी मुलजिम सुनील और शराब फरोश अरशद गिरफ्तार। इश्तहारी मुलजिम सुनील रोड अबरी के मुकदमे में 4 साल से मतलूब था। शराब फरोश और अरशद से 75 लीटर शराब बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं ननकाना साहब से, जहां DPO बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। डकैती के मुकदमे में मतलूब इश्तहारी मुलजिम सुनील और शराब फरोश अरशद गिरफ्तार। इश्तहारी मुलजिम सुनील रोड अबरी के मुकदमे में 4 साल से मतलूब था। शराब फरोश अरशद से 65 लीटर शराब बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं ननकाना साहब से, जहां DPO बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डकैती के मुकदमे में मतलूब इश्तहारी मुलजिम सुनील और शराब फरोश अरशद गिरफ्तार। इश्तहारी मुलजिम सुनील रोड अबरी के मुकदमे में 4 साल से मतलूब था। शराब फरोश अरशद से 65 लीटर शराब बरामद। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान बैतुल माल स्कूल राजनपुर में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई। तकरीब में बच्चों ने रंगा रंग टैबलो पेश करके समा बांध दिया, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर जावेद इकबाल खसूसी तौर पर शरीक हुए। तकरीब का मजीद अहवाल समीउल्लाह गबोल की इस रिपोर्ट में। मजदूर बच्चे और मजदूरों के बच्चों के लिए कायम होने वाले पाकिस्तान बैतुल माल स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई। इस मौका पर स्कूल इंतज़ामिया का कहना था कि महदूद वसाइल के बावजूद असातिज़ा की मेहनत की वजह से बच्चे बहुत अच्छे नताइज दे रहे हैं। हमारे पास लेबर चाइल्ड आते हैं, ऑर्फन बच्चे आते हैं, इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इनके वालिदैन से मिल के भी हम इनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनके वालिदैन की पेरेंट्स टीचर मीटिंग करके मेरा नाम हरीम मुमताज़ है और मेरे बाबा गाड़ी के कंडक्टर हैं, और जब मैं अपने घर लेके जाऊंगी तो मैं बहुत खुश होंगी कि मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी पोजीशन फर्स्ट पोजीशन आई है, और मैं इस वक्त खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। हमारे इस इदारे ने बहुत मेहनत की। खबर शामिल करेंगे उकाड़ा से, जहां खवातीन के जरिए सादालू इंसानों को शादी के बहाने लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। DPO फैसल शहजाद के मुताबिक मुलजिमान खवातीन के जरिए टेलीफोनिक कॉल्स पर राबिता करके मर्द हजरात को जाल में फंसाते थे। रफाकत नामी शख्स को शादी के बहाने टेलीफोनिक कॉल से राबिता किया गया। बाद अज़ा जना का ड्रामा रचाकर सादालू शहरी से 2,80,000 रुपये बटोर लिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं उकाड़ा से, जहां खवातीन के जरिए सादालू इंसानों को शादी के बहाने लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। DPO फैसल शहजाद के मुताबिक मुलजिमान खवातीन के जरिए टेलीफोनिक कॉल्स पर राबिता करके मर्द हजरात को जाल में फंसाते हैं। रफाकत नामी शख्स को शादी के बहाने टेलीफोनिक कॉल से राबिता किया गया। बाद जना का ड्रामा रचाकर सादालू शहरी से 2,80,000 रुपये बटोर लिए गए। आगे बढ़ो, आपको बताएं ननकाना साहब मांगटा वाला रोड नस काली बेड़ स्टॉप पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। रेस्क्यू 1122 का अमला 7 इमरजेंसी व्हीकल्स के साथ वहां पहुंच गया। ननकाना साहब 12 से जायद जख्मियों को रेस्क्यू अमले की जानिब से तिबी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल ननकाना साहब मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम खनवास की जानिब से हादसे पर पहुंच गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और जख्मियों को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए रेस्क्यू को हिदायत जारी की गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में 50 से ज्यादा रेस्क्यूज काम कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं ननकाना साहब से, जहां मांगटा वाला रोड नस काली बेड़ स्टॉप पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई।
रेस्क्यू 1122 का अमला 7 इमरजेंसी व्हीकल्स के साथ वहां पहुंच गया। आपको एक खबर से अपडेट कर रहे हैं। ननकाना साहब 12 से ज़ायद जख्मियों को रेस्क्यू अमले की जानिब से तिबी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल ननकाना साहब मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम भी जाए हादसा पर पहुंच गए। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। ननकाना साहब से जहां मांगटा वाला रोड नस काली बे स्टॉप पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। रेस्क्यू 1122 का अमला 7 इमरजेंसी व्हीकल्स के साथ वहां पहुंच गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मूसा खेल में गुज़िश्ता 2 साल से बिजली का खराब ट्रांसफार्मर की मुरम्मत ना करवाई जा सकी, अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज। मूसा खेल के मोहल्ला जाफराबाद के वकीलों ने एहतजाज करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से हमारा बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, जिसके बायस बच्चों को स्कूल जाने, साफ पानी ना होने समेत हम दीगर मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं। वाबदा हुकाम की बार बार इतला की गई मगर कोई अमल नहीं हो रहा। इलाका वकीलों ने हुकाम बाला से अपील करते हुए कहा कि हमारा ये अहम मसला हल किया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं मूसा खेल से, जहां गुज़िश्ता 2 साल से बिजली का खराब ट्रांसफार्मर मुरम्मत ना करवाई जा सकी, अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज हो गए। उनका कहना था कि मूसा खेल के मोहल्ला जाफराबाद के वकीलों ने एहतजाज करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से हमारा बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, जिसके बायस बच्चों को स्कूल जाने, साफ पानी ना होने समेत हम दीगर मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं। वाबदा हुकाम को भी बार बार इत्तला की गई मगर कोई अमल नहीं हो रहा। इलाका वकीलों ने हुकाम बाला से अपील करते हुए कहा कि हमारा ये अहम मसला हल किया जाए। खबर शामिल करेंगे जैकबाबाद से, जहां व्यापारी से राजधानी की वारदात के इल्जाम में 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज। पुलिस एहलकारों पर मुल्जिमान को सहूलत फराहम करने का भी इल्जाम एहलकारों को क्वार्टर घाट कर दिया गया। क्वार्टर घाट होने वाले एहलकार में अब्दुल सत्तार जागरानी और कालू पनूर शामिल हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज थाना सिटी की हदूद नंगर मोहल्ला में व्यापारी से 10 लाख रुपए लूट लिए गए थे। वारदात के दौरान पुलिस एहलकारों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था। आपको अपडेट कर रहे हैं जैकबाबाद से, जहां व्यापारी से राजधानी की वारदात के इल्जाम में 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस एहलकारों पर मुल्जिमान को सहूलत फराहम करने के भी इल्जामात हैं। एहलकारों को क्वार्टर घाट कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं जैकबाबाद से, जहां व्यापारी से राजधानी की वारदात के इल्जाम में 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज। खबर शामिल करेंगे जलालपुर पीरवाला से, जहां बस्ती सावन में दरिंदा दुश्मनी के बिना पर फायरिंग, 1 शख्स कत्ल, मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक मकतूला 50 साला मलिक बशीर घर के बाहर दुकान पर बैठा था कि अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्जिमान ने आकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में बशीर मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि मुल्जिमान मौका से फरार हो गए। लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं जलालपुर पीरवाला से, जहां बस्ती सावन में दरिंदा दुश्मनी की बिना पर फायरिंग, 1 शख्स कत्ल, मुल्जिमान फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल 50 साला मलिक बशीर घर के बाहर दुकान पर बैठा था कि अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्जिमान ने आकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में बशीर मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी है। आगे बढ़कर आपको बताएं, जैकबाबाद में मुसल्लह अफराद ने मजदूर शख्स के घर में घुसकर बीवी और बच्चों पर तशद्दुद, घर में तोड़ फोड़, घर का मुकम्मल सामान ले उड़े।
जैकब आबाद की तहसील ठुल के अली शेर कॉलोनी में मुसल्लह अफराज ने बशीर जमाली के घर में घुसकर हमला किया, जिसके नतीजे बीवी फातिमा और इसके माजूर शोहर बशीर जमाली को शदीद जख्मी कर दिया। मुतासिरा अफराद ने SSP जैकब आबाद, DIG लाड़काना और IG सिंध से मुतालबा करते हुए कहा कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। जैकब आबाद में मुसल्लह अफराद ने माजूर शख्स के घर में घुसकर बीवी और बच्चों पर तशद्दुद किया, घर में तोड़ फोड़ भी की, घर का मुकम्मल सामान भी ले उड़े। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। जैकब आबाद से, जहां मुसल्लह अफराद ने माजूर शख्स के घर में घुसकर उसके बीवी और बच्चों पर तशद्दुद किया, घर में तोड़ फोड़ भी की और घर का मुकम्मल सामान भी ले उड़े। खबर शामिल करेंगे लिया चौक आजम चक नंबर 336 TDA के रहायशी अफराद का 2 दिन से खराब ट्रांसफार्मर ठीक ना करने पर वापडा के खिलाफ M रोड पर दफ्तर के सामने एहतजाज, पूरी तौर पर ट्रांसफार्मर ठीक करके लगाने का मुतालबा। लिया चौक आजम 2 दिन बाद ट्रांसफार्मर ठीक ना होने पर चक नंबर 336 TDA के अस्पताल मकीन सरापा एहतजाज। इलाका मकीनों ने MM रोड पर वापडा दफ्तर के सामने एहतजाज किया और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इलाका मकीनों का कहना है कि 2 रोज से ट्रांसफार्मर खराब है और कंप्लेन भी दर्ज करवाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 4 रोज कबल ट्रांसफार्मर खराब हुआ था। वापडा एहलकारों ने 20,000 रुपए लेकर ठीक किया, अब दोबारा पैसे मांग रहे हैं। इलाका में कायम मस्जिद और मदरसे में नमाजियों और तुलबा को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। आपको अपडेट कर रहे हैं लिया चौक आजम चक नंबर 336 TDA के रहायशी अफराद का 2 दिन से खराब ट्रांसफार्मर ठीक ना करने पर वापडा के खिलाफ MM रोड पर दफ्तर के सामने एहतजाज किया गया। फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर ठीक करके लगाने का मुतालबा। लिया चौक आजम 2 दिन बाद ट्रांसफार्मर ठीक ना होने पर चक नंबर 336 TDA के इलाका मकीन सरापा एहतजाज हो गए। इलाका मकीनों ने MM रोड पर वापडा दफ्तर के सामने एहतजाज किया और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इलाका मकीनों का कहना है कि 2 रोज से ट्रांसफार्मर खराब है, कंप्लेन भी दर्ज करवाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 4 रोज कबल ट्रांसफार्मर खराब हुआ था। वापडा एहलकारों ने 20,000 रुपए लेकर ठीक किया, अब दोबारा पैसे मांग रहे हैं। जैकब आबाद में चंद रोज कबल हादसे का शिकार होने वाला शख्स कराची के निजी हॉस्टल में चल बसा। जैकब आबाद की तहसील के नवाही गांव उद्वा के रहायशी फैज मोहम्मद कोरी चंद रोज मोटरसाइकिल हादसे में शदीद जख्मी हुआ था, जो आज जख्मियों की ताब न लाते हुए चल बसा। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। जैकब आबाद से, जहां चंद रोज कबल हादसे का शिकार होने वाला शख्स कराची के निजी हॉस्टल में चल बसा। जैकब आबाद की तहसील के नवाही गांव का रहायशी फैज मोहम्मद कोरी चंद रोज कबल मोटरसाइकिल हादसे में शदीद जख्मी हुआ था, जो आज जख्मियों की ताब ना लाते हुए चल बसा। आगे बढ़े और आपको बताएं, सेक्रेटरी सराज साकिब अली अतील का हासिलपुर के दौरा, कपास की फसल की मौजूदा सूरत हाल का जायजा भी लिया। फील्ड फॉर्मेशंस को काश्तकारों की रहनुमाई के अमल में मजीद तेजी लाने की हिदायत भी की। इस मौका पर सेक्रेटरी ज़राअत ने कहा कि कपास की फसल बढ़ती के आम मरहले से गुजर रही है, लिहाजा तमाम अफसरान फील्ड में जाकर सफ़ेद मक्खी, तरपस, चिस्तेला और गुलाबी संडी की कॉलोनियाँ बनाने से पहले उनको मौसर अदराक के लिए काश्तकारों की बर वक्त रहनुमाई करें। उन्होंने मजीद कहा कि सफ़ेद मक्खी मुतबादल पौधों पर अफजाइश को बढ़ाकर कपास की फसल पर मुंतकिल हो सकती है। इससे पहले कि सफ़ेद मक्खी कपास की फसल पर हमला करे, उसके कॉलोनी बनने के अमल को ख़त्म किया जाए। एडिशनल IG साउथ पंजाब जफर इकबाल अवान एक रोज़ा दौरे पर हारून आबाद पहुंच गए। एडिशनल IG साउथ पंजाब जफर इकबाल अवान एक रोज़ा दौरे पर हारून आबाद पहुंच गए। जफर इकबाल अवान की हारून आबाद आमद पर DSP गुल हसन और SHO थाना सिटी अफसार हुसैन गुजर ने इस्तकबाल किया और इस मौका पर सिक्योरिटी के फुल परफ्यूर इंतजाम किए गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यकीनन रोजाना की बुनियाद पर विजिट करने से अच्छा तासुर फैलता है। हारून आबाद आकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने थाना हारून आबाद
का रिकॉर्ड भी चेक कर लिया है, जो कि ठीक है। पुलिस लोगों के मसाइल हल करवाने में अपना किरदार अदा करेगी और क्राइम को कंट्रोल करने और ड्यूटी में गफलत बरतने वाले पुलिस अफसरान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं होंगे। खबर शामिल करेंगे हरिपुर से, जहां मुस्लिम लीगी रहनुमा जिया अब्बासी को लोरा चौक में कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जायदाद के तनाज़े पर मुखालिफिन ने अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल किया। कातिल इर्तिकाब जुर्म के बाद मौके से फरार हो गए, जबकि लीगी रहनुमा जिया अब्बासी की लाश ट्रांसफर सेंटर मुंतकिल कर दी गई। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं हरिपुर से, जहां मुस्लिम लीगी रहनुमा जिया अब्बासी को लोहरा चौक में कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जायदाद के तनाज़े पर मुखालिफिन ने अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल किया। कातिल इर्तिकाब जुर्म के बावजूद मौके से फरार हो गए। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं हरिपुर से, जहां मुस्लिम लीगी रहनुमा जिया अब्बासी को लोहरा चौक में कत्ल कर दिया गया। आगे बढ़कर आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम की जानिब से दोस्ताना माहौल में लोगों की दाद रसी का अमल जारी। डीपीओ ने फर्दन जिला खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए साइलिन की शिकायत और मसाइल सुने। डीपीओ ने मुतल्लिका अफसरान को साइलिन की दाद रसी और इनके मसाइल के हल के लिए तहरीरी अहकाम जारी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। शहरियों को दरपेश मसाइल की फौरी अजाले के लिए बिला तफरीक इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। खानेवाल पुलिस मखलूक खुदा की खदमत और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। पुलिस अफसरान और जो इन सदिक दिल से अवामी खदमात को अपना शार बनाएं। पुलिस अफसरान अवाम दोस्त पुलिसिंग के साथ भरपूर इंसदादी कार्रवाइयों से मुआशरे में एहसास तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा को फ़रोग़ दें। इंसाफ की फराहमी, अवामी खदमत और जराइम पेशा अनासिर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना ही हमारा मकसद होना चाहिए। खबर शामिल करेंगे गोजरा से, जहां ठेकेदार का भत्ता न देने पर कसाब पर वहशियाना तशद्दुद। मुतासरा कसाब वुरसा समेत ठेकेदार के खिलाफ सरापा एहतजाज। जंग रोड ब्लॉक करके ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी। कसाब राशिद और इसके वुरसा ने ठेकेदार के खिलाफ THQ अस्पताल के सामने जंग रोड पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि ठेकेदार गुग्गू बड़ाइच माहाना भत्ता वसूली करता है। माहाना 20,000 रुपये भत्ता न देने पर उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुजाहिरीन के एहतजाज के बायस जंग रोड ब्लॉक हो गया और ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई। मुजाहिरीन ने DPO टोबा टेक सिंह से कमेला के बाअसर ठेकेदार के खिलाफ पूरी कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गोजरा में ठेकेदार का भत्ता न देने पर कसाब पर वहशियाना तशद्दुद। मुतासरा कसाब वुरसा समेत ठेकेदार का खिलाफ सरापा एहतजाज। जंग रोड ब्लॉक करके ट्रैफिक की आमदो रफ्त भी मुअत्तल कर दी। बलूचिस्तान में डाकू राज कायम। चागी में तफ्तान से दिलबदीन नेशनल बैंक के पैसे ले जाने वाली गाड़ी को लूट लिया गया। लेविस जराये के मुताबिक डाकू 5 करोड़ रुपए लूट कर फरार हुए। लेविस फोर्स ने उन मुलजिमान का ताक़ुब किया। शहरियों में खौफो हरास फैल गया। जराये नेशनल बैंक के मुताबिक नेशनल बैंक तफ्तान के कैश इंचार्ज से 5 करोड़ 80 लाख रुपए डाकुओं ने लूट लिए। पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में डाकू राज कायम। चागी में तफ्तान से दिलबदीन नेशनल बैंक के पैसे ले जाने वाली गाड़ी को लूट लिया गया। जराये के मुताबिक डाकू 5 करोड़ रुपए लूट कर फरार हुए। लेविस फोर्स ने उन मुलजिमान का ताक़ुब भी किया। शहरियों में खौफो हरास फैल गया। जराये नेशनल बैंक के मुताबिक नेशनल बैंक तफ्तान के कैश इंचार्ज से 5 करोड़ 80 लाख रुपए डाकुओं ने लूट लिए। पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन शुरू जारी।
आगे बढ़ो और आपको बताएं, AIG साउथ पंजाब का RPO के हमरा बहावल नगर का एक रोज़ा दौरा पुलिस लाइन पहुंचने पर पुलिस के चेको चौबंद दस्ते ने सलामती दी, यादगार शौदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, दुआ की और पुलिस लाइन पर गाड़ियों की इंस्पेक्शन भी की। SDPOs के साथ क्राइम मीटिंग की और जेरे समात मुकदमात को मेरिट पर जल्द से जल्द रिस्क्यू करने की हिदायत की। तकरीब के दौरान पुलिस अफसरान और मुलजिमान में सरका बिलजबर, मंशियात फरोशी, कत्ल, जना बिलजबर और दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी और माल मसरूका की बरामदगी पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनामात तकसीम किए। बाद मीडिया नुमाइंदगान से तारीफी मीटिंग भी की। खबर शामिल करेंगे हासिलपुर से, जहां थाना सदर में राव शहजाद बाबर SHO तैनात बहावलपुर के DPO ने अहकामात पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। मुतअद्दिद शहरी भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे राव मोहम्मद फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी राव मोहम्मद फैसल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हासिलपुर थाना सदर की हदूद में बढ़ते हुए जराइम के पेश नज़र DPO बहावलपुर की जानिब से हासिलपुर तैनात किए गए नए SHO राव शहजाद बाबर ने अपना चार्ज संभालते ही जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ राव शहजाद बाबर मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने किन किन जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है और वो आगे क्या अज़म रखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPO साहब बहावलपुर के अहकामात की रोशनी में सबसे पहले तो जो मंशियात फ़रोश हैं थाना सदर हासिलपुर की हदूद में, इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया। एक 9C का मुकदमा दर्ज किया गया, 2200 ग्राम चर्स रिकवर करके, चालू भट्टी 200 लीटर शराब रिकवर की है, 7 मुजरिमान इश्तिहारियों को पाबंद सलासल किया है। उसके अलावा यहाँ पे बकरे चोरी की वारदातें हो रही थी, जो एक कार चोर गैंग पकड़ा है जिससे रिकवरियाँ की हैं और मुख्तलिफ मुकदमात ट्रेस हुए हैं। इसके अलावा दीगर जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है। जी, जैसा कि हमने SHO साहब से जाना तो उनका यही कहना था कि जुराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ अमल में लाई भी जा रही हैं और आगे भी उनके ख़िलाफ़ यूँ ही कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया राव मोहम्मद फैसल। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही।